عظیم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا اور آج کے ہماری اس کلاس میں طلباء و طالبات کا رحمان اردو اسٹڈی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اردو قواعد سے متعلق اس کے اصول اور سسٹم کیا ہے، آج ہم اس کو بلیک بورڈ پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز یہاں یقین دلا دیں کہ ہم نے اپنے اس یوٹیوب چینل کا جو ایک عنوان رکھا وہ یہ کہ ہمیں صرف اور صرف اردو زبان و ادب، یعنی اردو زبان ادب، انہی تین لفظوں پر پورے اردو ادب کو ہمیں محیط کرتے ہوئے جتنے بھی اصناف، لسانیات، تمام چیزیں جو بھی آتی ہیں، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ سب کو بیان کر دیں۔ صنائع بدائع قواعد جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہیں سے ہم لے کر آئیں گے، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھاتے تو ہیں، بتاتے ہیں، لیکن اس کو بس یوں ہی اٹھا لیے اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے اس کی شروعات، اس کا آغاز، اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے میں کافی مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کی ابتدا سے چلیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں جو قواعد سے متعلق ہم نے بنایا ہے، اس میں ہم نے اس بات کی مکمل وضاحت بھی کی اور کوشش بھی کی کہ کسی بھی چیز میں زبان کا وجود، جب انسان کی تخلیق ہوئی، ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ جب یہ کائنات بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات کو بنایا۔ اب جب حیوانات آ گئے اس میں انسان بھی آ گئے، تو پھر انسان جب اس دنیا میں آئے تو ظاہر سی بات ہے ان کو اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے زبان کا جو استعمال کیا تو زبان وجود میں آئی۔ اب جب زبان وجود میں آ گئی تو اس کے بعد پھر قواعد کا نمبر آتا ہے، یعنی زبان کے بعد قواعد آتی ہیں۔ تو اس لیے جب ایک ترتیب سے ہم سمجھنا چاہیں گے تو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قواعد کہاں سے آئی، کیا ضرورت تھی۔ لہٰذا ہم آج اردو قواعد سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیو جو قواعد سے متعلق بنائے ہیں اس میں ہم نے آپ سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ اردو زبان، اس زبان کی جو ہم نے تعریف کی تھی، غالباً ہم نے پہلے بھی لسانیات کے اپنے موضوع میں زبان پر جب تعریف کی تھی تو اسی زبان کو ہم یہاں لیتے ہیں کہ زبان، اس کی تعریف کیا ہے؟ آواز اور الفاظ کا مجموعہ۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آواز یہ صوتیات کے ضمن میں ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم جلد ہی مصوتے اور مصمتے اور دیگر چیزوں میں کریں گے، لیکن یہاں آج ہم آئے ہیں تو صرف زبان سے جو تعریف نکلتی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک آواز اور ایک الفاظ۔ اسی الفاظ کو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسے ہم اردو قواعد کا نام دیتے ہیں۔ جو آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس میں ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک آواز ہوتی ہے۔ جب وہ لفظ نکلتا ہے تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ سے یہ بتا دیا کہ صرف میں لفظ سے بحث ہوتی ہے، نحو میں باطن یا معنی سے بحث ہوتی ہے۔
तो आज हम जो यहाँ आपके सामने इकट्ठा हुए हैं, हम सब जो लफ्ज है, हम लफ्ज पर बहस करने के लिए आए हैं, ना कि हम अभी माना यानी नहव पर हम बहस करने आए हैं। अभी हम फिलहाल सिर्फ सर्फ पर बहस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसको हम फिलहाल हटाते हैं। देखिए जब आवाज उसके मुंह से निकली तो या तो वो आवाज मौजू या मोहम्मद। मौजू के माने होते हैं, मौजू कहते हैं बा माना लफ्ज को। मौजू कहते हैं असल शय जिसके मुताल्लिक आप देखिए कि हमने अल्फाज की दो किस्म की, जबान से आवाज और अल्फाज आए। फिर अल्फाज की हमने दो किस्में की। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब जबान वजूद में आ गई, हमारा काम होने लगा, हम अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने लगे, तो फिर आखिर कवायद की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी इस मुश्किल जैसे फन पर खामा फरसाई की जाए और लोगों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़े? लेकिन आखिर ये ग्रामर है क्या चीज? इसी को समझ रहे हैं कि जब उसके अल्फाज जबान से निकले तो उसमें क्या है, दो चीज, या तो वो लफ्ज माना देगा या माना नहीं देगा। दो ही चीज है। कोई भी चीज हमारे मुंह से निकलती है जब लफ्ज की सूरत अख्तियार करती है, शक्ल अख्तियार करती है, तो उससे दो चीज आती है, या तो वो मौजू होगा जिसमें कोई माना होगा, और या वो मोहम्मद होगा जिसमें कोई माना नहीं होगा। हालांकि ये कहा जाता है, और ये हमने पढ़ा भी है कवायद की किताबों में और जगह, कि मोहम्मद का कवायद से कोई ताल्लुक नहीं, यानी मोहम्मद को कवायद की दुनिया से बिल्कुल अलग रखा जाता है। इस पर कोई बहस नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन हम इसकी जरूरत भी आज आपको बताएंगे कि मोहम्मद की भी हमारे यहाँ जरूरत, उसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम बताते हैं। मौजू कहते किसको हैं? मौजू कहते हैं असल शय जिसके मुतालिक किसी इल्म में बहस करें। मौजू हो गया एक लफ्ज जो हमने दिया, उसमें माना जब पाया जाएगा तो वो चीज क्या, माना वो शय हो गई। अब हम उस लफ्ज के मुतालिक इल्मी बहस करेंगे, ये उसका मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि लफ्ज में माना नहीं होगा तो हम इल्मी बहस करेंगे, तो मुहम्मल हो गया, इसलिए हम उसको बहस से बाहर कर दिए। लेकिन जब माना पाया जाता है तो फिर हम उसमें इल्मी बहस करते हैं। यहाँ हो गया कि बा माना लफ्ज या अल्फाज, यानी समझ में ये आ गया इंसान के मुंह से जो निकलता है लफ्ज वो या तो मौजू होगा या मुहम्मल होगा, बा माना लफ्ज होगा। एक और चीज है जो यहाँ जरूरी भी है, कंफ्यूज करती लोगों को, वो ये है कि इल्म मंतिक में मौजू को या बा माना लफ्ज को मुब्तदा कहते हैं जो खबर के मुकाबिल हो। ये इल्म मंतिक का मसला है, इसकी जरूरत यहाँ शायद ही पड़ेगी, फिर भी हमने इसको जिक्र कर दिया कि इल्म मंतिक में मुब्तदा इसको कहते हैं जो खबर के मुकाबिल हो। ये आपका मौजू हो गया। ये सारी चीजें सर्फ में है। सर्फ। अब यहाँ आपको एक जो कंफ्यूजन होता है, शक होता है अमूमन कवायद पढ़ने वालों के लिए, वो ये है कि लोग लफ्ज, अल्फाज, कलमा और कलाम सब बोलने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये समझना चाहिए कि कलमा क्या है, कलाम क्या है, अल्फाज क्या है, मौजू क्या है। तो ये जो मौजू हम बोलते हैं ये दरअसल सर्फ के फन से आता है। लेकिन हम जब कलमा बोलते हैं ये है कालेमा, ये क्या है, ये नहव ज़बान में आता है, ये इल्म सर्फ में है और ये इल्म नहव में होता है। लेकिन हम उसको लाकर यहाँ रख देते हैं। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में बता दिया था कि आप सर्फ और नहव दो इल्म को पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर में, और हमने दोनों में आपको बांट दिया था कि आप
एक एग्जाम्पल के रूप में कि आप दो सवालियों पर सवाल हो रहे हैं। अब कलमा जो है, मौजू को कलमा भी कहा जाता है, लेकिन जब हम मौजू को कलमा कह देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम इल्मे सर्फ से हट गए, अब हम इल्मे नहव की तरफ चल दिए। अब जब हम इल्मे नहव की तरफ चलते हैं तो पहले हम कलमा की तारीफ क्या है इसको हम मौजू जब कहते हैं तो ये इल्मे सर्फ हो गया, लेकिन जब हम कहते हैं नहीं कलमा तो अब हम इल्मे सर्फ की बात नहीं करते हैं बल्कि इल्मे नहव में अब आ जाते हैं। और जब इल्मे नहव में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है अब उसके उसूल और कवायद मुरत्तब होंगे, जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल का सबब भी बनते हैं कि हम इसको सब समझ लेते हैं। हालांकि ये बात यहाँ ज़हन नशीं कर लीजिए कि मौजू ही का दूसरा पार्ट कलमा है, यानी मौजू जिसको कहा जाता है उसी को कलमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कलमा की हम तारीफ लेते हैं। कलेमा, कलमा कहते हैं बात, कौल, वो बामाना लफ्ज, वो बामाना लफ्ज जो आदमी के मुंह से निकलते हैं। वही बात हो गई जो मौजू में बताया गया कि बामाना लफ्ज, यहाँ भी वही बात कही जा रही है, बात, कौल, जो बामाना लफ्ज आदमी के मुंह से निकलते हैं, ये भी क्या है? कलमा है। लेकिन ये इल्मे नहव है, ये ध्यान रखें, ये इल्मे नहव की असनाफ से आता है। अब उसके बाद हम फिर बोलने लगते हैं क्या कि कलाम, समझ नहीं सके, लेकिन हम वहां पर फिर ये भी बोलते हैं तो फिर कलाम क्या होता है? तो कलाम को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, ये भी इल्मे नौही की सिर्फ में से आता है। इल्मे नौही में ये भी है, कलाम कहते हैं सुखन, बात, गुफ्तगू, ये भी इल्मे नौ है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? वो इबारत जो कलमों से मुरत्तब हो, यानी जो कलमों से मिलकर बने। अभी तक तो हम कलमा एक लफ्ज होता है, लेकिन अब कलाम कहने इसका मतलब कई लफ्ज मिलकर जो बनता है तो वो कलाम होता है। इस तरीके से हम कहते हैं उर्दू में जुमला होता है। तो एक तरफ आप जुमला पढ़ते हैं तो वो इल्मे सर्फ में चले जाते हैं, लेकिन जब उसी बात को आप कलाम कह देते हैं तो वो इल्मे नहव हो जाता है। हम आपको फकत इल्मे सर्फ आज पढ़ाने के लिए यहाँ हाजिर हैं। इल्मे नहव भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इल्मे सर्फ को समझ लिया जाए। अब हम इल्मे नहव को, कलमा को यहीं छोड़ते हुए हम मौजू की तरफ फिर से आते हैं और इसकी फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हालांकि मुनासिब ये है कि आज हम मुहम्मल को, क्योंकि अब हम इसके आगे बढ़ेंगे इसलिए हम मुहम्मल को यहाँ ना छोड़ें, बल्कि मुहम्मल के बारे में जो राइज है, जो बताया जाता है कवायद की किताबों में कि ये बेमाना लफ्ज को कहते हैं, इसमें कोई माना नहीं पाया जाता है और कवायद की दुनिया में उसकी कोई गिनती या उसका कोई शुमार नहीं होता है। फिर भी हमने कोशिश की कि आखिर इसके साथ ये ज़्यादती क्यों है? क्या मुहम्मल को इस तरीके से छोड़ देना? हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके अल्फाज का इस्तेमाल बखूबी हो रहा है और हम करते भी हैं और हम खुद ही इनकार भी कर रहे हैं। आप सोचें कि हम कहते हैं पानी, तो ये हो गया मौजू, और जब बोलते हैं वानी तो ये मुहम्मल हो गया। पानी ये मौजू है और वानी ये मुहम्मल है, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं उससे? अरे भाई, आप गौर करें, अरे भाई पानी, वानी, कुछ लाएंगे। अब क्या मतलब हुआ? अभी तक तो आप कह रहे थे कि वानी का कोई मतलब नहीं होता, ग्रामर में कवायद में इसकी कोई रूल नहीं है, लेकिन आप देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में किस खूबसूरती के साथ ये यहाँ दाखिल हो जाता है और अपना एक मतलब, अपना एक माना भी देने लगता है, बताने लगता है कि नहीं आप हमको बेकार समझते हैं, बेकार नहीं, हमारी भी एक अहमियत है। क्या है इनकी अहमियत? ये खुद कहते हैं कि हम मदद, ताउन, सहायता के साथ आते हैं। कैसे आते हैं? पूछा गया, कहा गया कि अरे भाई पानी वानी कुछ लाएंगे, जब पानी वानी कुछ लाए तो इसका मतलब हुआ कि पानी के साथ और क्या लाए हैं, यानी पानी लाए हैं तो उसके साथ और भी कुछ है।
तो वानी ये बताता है कि पानी के साथ और बहुत सी अशिया है जो लाई गई है या लाई जा रही है या लाई जाएगी। तो अब मोहम्मद कहकर आपने उसको खारिज किया, लेकिन यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ इस बीच में आकर और लोग ये रब्त पैदा कर दिया और अपना माना एक अलग से निकाल दिया कि आप पानी लाए हैं, एक पानी है, लेकिन हम वानी शब्द लाकर, लफ्ज लाकर हमने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया अपने दामन में। ये मोहम्मद की बहुत बड़ी खूबसूरती है जो हम देखते हैं कि कवायद की किताबों में नहीं मिल रही है। अब हम चाहते हैं कि मोहम्मद को थोड़ा सा और तफसील से हम आपको बता दें ताकि आप भी जान लें कि मोहम्मद की क्या कदर कीमत है। ये मोहम्मद जिसके बारे में हम बता रहे थे, क्या कहते हैं, मोहम्मद बेमाना लफ्ज जिसमें कोई माना नहीं पाया जाता, यानी गैर मानादार। लेकिन ये आप मोहम्मद की तारीफ में लिखेंगे, जानेंगे, बेमाना लफ्ज, गैर मानादार, लेकिन मानादार लफ्ज की मदद के लिए साथ आता है। ये ध्यान दें, ये किस लिए आता है, मदद के लिए साथ आता है और मजीद वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मजीद वजाहत, जब हम मोहम्मद के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो मजीद वजाहत हो जाती है। तो हमने मौजू समझा, हमने कालिमा को भी समझ लिया और हमने मोहम्मद को समझा। अब हमें यकीन है कि आप तमामी लोग शायद इस बात से समझ गए होंगे, इसलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम इनकी किस्मों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने मौजू और मोहम्मद को समझ लिया है। गालिबन हमें उम्मीद है कि आप तमामी तलबा तालिबात और मौजूद नाज़रीन को बखूबी समझ में भी आ गया होगा और जहन में बैठ भी गया होगा। तो अब हम आगे जब पढ़ते हैं तो मौजू कहते हैं बामाना लफ्ज को। अब हम बामाना लफ्ज को जब सोचते हैं कि बामाना लफ्ज क्या है, कैसे है, तो इसमें एक उसकी तारीफ होती है क्या कि अपनी सूरत और हैयत, इन दोनों के एतबार से लफ्ज में फर्क होता है। जो उसकी सूरत है और जो उसकी हैयत है, बनावट, शक्ल, इन सब चीजों से कहते हैं उससे क्या एतबार से लफ्ज में फर्क होता है। इस लिहाज से उसकी दो किस्में क्या है, हम लोग यहीं से मौजू की दो किस्में सीधे कर देते हैं, ये दो किस्में हो गई, लेकिन नहीं, ये दोनों को मिलाकर यहां किस्म होती है क्या, मुस्तकिल, गैर मुस्तकिल। ये है मौजू की हम फौरन बंटवारा कर दिए। क्या करते हैं, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। ये नहीं समझ पाए कि क्यों बंटवारा करना है और किस एतबार से बंटवारा करना है। वो एतबार क्या है कि अपनी सूरत और हैयत के एतबार से लफ्जों में भी फर्क होता है। अब जब लफ्ज में फर्क होता है तो इस फर्क के लिहाज से उसकी दो किस्में हो जाती है, या तो वो माना मुस्तकिल रखेगा या तो वो माना मुस्तकिल नहीं रखेगा। आप समझें, बहुत बारीकी से गौर करें तो समझ में आएगा ये ग्रामर है, वरना शायद जहन में नहीं बैठेगा। फिर हम कहते हैं कि मौजू कि हम दो किस्में फौरन कर लेते हैं, होगा लोगों के हिसाब से दुरुस्त सही, लेकिन हमारे हिसाब से हम फर्क किस बात का करते हैं, लफ्ज का, उसकी सूरत और हैयत के एतबार से फर्क करते हैं। उसकी एक शक्ल है, उसकी एक सूरत है। जब हम शक्ल और सूरत के एतबार से फर्क करते हैं तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, या तो वो माना रखेगा या तो वो माना नहीं रखेगा। ये इल्मे सर्फ में आता है, इल्मे सर्फ में है। अब हमने एक कलिमा लफ्ज ले लिया था और इसको हमने बताया था कि कलमा क्या है। इसके बाद हमने कलाम भी आपको बता दिया कि कलमों से मिलकर कलाम बनता है। ये इल्मे नौ है, ये हमें सर जहां लफ्ज से बात होती है, लफ्जों के बारे में बात करते हैं, और दूसरा इल्मे नौ जहां मानी के बारे में बात की जाती है, बातिन के बारे में बात की जाती है। तो अब हम जब इल्मे नौ में आते हैं तो इसकी दो किस्में हैं। कौन सी? मुफरद, मुरक्कब।
अब आपके लिए खल्त मत होना शुरू हो गया कि तो अब इल्म नहव में मुफरद और मुरक्कब हम तो इसको ऐसे नहीं ऐसे जानते हैं, तो आप समझिए कि ये असल उसकी शाख है। इस तरीके से हम चलेंगे तभी हम असल ग्रामर को समझ पाएंगे, और नहीं तो वही होगा कि जिस तरीके से खाना बनाते हैं और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लास्ट में हम तलाश करते हैं कि इसमें दाल कहाँ है और चावल क्या है या चीज़ें क्या हैं, तो हमें क्या मिलता है कि सारी चीज़ें खिचड़ी हो गई। अब हम किसी चीज़ का फर्क और उसकी कोई शनाख्त नहीं कर पाते। तो हम इल्म नहव में जब आते हैं तो मुफरद और मुरक्कब उसकी तारीफ होती है। अब मुफरद किसको कहते हैं? मुफरद कहते हैं फर्द को, एक को। उर्दू में आपको हम फिर एक बार समझा दें कि उर्दू में, क्योंकि हमारी जबान जो उर्दू इसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें वाहिद होता है या जमा होता है, बीच में कोई गुंजाइश नहीं होती है। जबकि अरबी जबान में ऐसा नहीं है, अरबी में वाहिद होता है, फिर तस्निया होता है, इसको दो माना दो कहा जाता है, फिर उसके बाद जमा होता है। हम जब उर्दू में बोलते हैं तो वाहिद और एक के बाद जितनी संख्या तादाद होगी वो जमा कहलाएगी। लेकिन जब हम अरबी में जाते हैं वही चीज, तो हम कहते हैं वाहिद एक, मुफरद एक, तस्निया दो। अब जब हम कहते हैं जमा, तो उससे ये मालूम होता है तीन या तीन से ज्यादा जब कोई चीज होगी तो जमा कहलाएगी। लेकिन ये उर्दू में नापैद है, नहीं पाई जा रही है। ये एक चीज है जो आपको यहाँ फर्क दिखेगा कि उर्दू में सिर्फ मुफरद और मुरक्कब होता है। अब इसके बाद भी इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा इल्म सर्फ पर आज फोकस है। इल्म नहव भी हम पढ़ाएंगे, फिलहाल इल्म सर्फ ही हमारा मकसद है। तो मुफरद कहते हैं एक शख्स को, एक जात को, एक चीज को, और मुरक्कब कहते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों को मुरक्कब कहा जाता है। मजीद वजाहत के लिए हम आपको दोनों की तारीफ लिख देते हैं ताकि आपके जहन में और अच्छी तरह से ये बैठ जाए, जान लें आपकी है क्या। आप देखें कि हमने मौजू की दो किस्में, उसके जो एक तारीफ सूरत और हैत थी उस एतबार से कर दी, एक मुस्तकिल और दूसरा गैर मुस्तकिल। अब मुस्तकिल के माना क्या होते हैं? मुस्तकिल कहते हैं जो अपनी जात से मुस्तकिल, यानी पूरे पूरे माना रखते हैं। अब दूसरा हमने क्या किया था? गैर मुस्तकिल। गैर मुस्तकिल कहते हैं जो अपनी जात से मुस्तकिल, अपनी पूरे माने ना रखते हैं, यानी ना मुस्तकिल माना रखते हो ना ही वो पूरे माना रखते हो। हाँ, रखेंगे कब? जब तक कि उनको दूसरे लफ्ज के साथ मिलाया न जाए। लिखा हुआ है कि जब तक दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर ना। तो ये हमारा हो गया मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। इसकी हमने आपको तारीफ की बता दिया कि मौजू की दो किस्म, मुस्तकिल गैर मुस्तकिल, उन दोनों की तारीफ। अब हम जो दूसरी गाड़ी पर सवार हैं, यानी इल्म नहव भी साथ लेके चल रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इसको भी कुछ बता दिया जाता है। लीजिए इसको भी बता देते हैं। मुफरद और मुरक्कब हमने इसको बांट दिया। अब जब हमने तारीफ क्या होती है कलमा का कि दो किस्में, मुफरद एक मुरक्कब। मुफरद कहते हैं वो अकेला लफ्ज जो अपना माना दे, उसको कलमा कहते हैं, क्योंकि कलमा ही से मुफरद है। मुरक्कब कहते हैं वो लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बने। यह आपकी हो गई मुरक्कब की तारीफ। अब जब हमने मुरक्कब की और मुफरद की तारीफ की, ये इल्म नहव से है। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं इल्म नहव है। हमें यहाँ इल्म नहव पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। हमें पहले हम लफ्ज को तो जान लें। जब हम लफ्ज जान लेंगे तो फिर हम उसके मानी को समझने में आसानी से उसको समझ भी सकते हैं। अब लफ्ज ही नहीं समझ रहे, लफ्ज को पढ़ भी नहीं पाते, तो जाहिर सी बात है मानी को भी समझ नहीं सकते। जैसे हमने आपसे कहा कि बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं कि जिनको हम पढ़ ही नहीं पाते। उम्मन आता है, जैसे कोई लफ्ज ले लेते हैं कि ये पैराग्राफ हमारी किताब से फलां जगह से माखूज है, आखज किया गया है। तो जब हम लफ्ज सही बोलेंगे तब उसका माना हमको समझ में आएगा। लेकिन अगर उसी माखूज को हम माखूज बोल दिए तो आप खुद इस बात को समझें कि फिर उससे क्या माना बरामद होगा। जैसा कि हम कवायद वाले वीडियो में बताए थे कि लाम पर पेश के बजाय जबर पढ़ देना, क्या माना बनता था वहां।
यहां आप सोच लीजिए क्या माना बनेगा। तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि पहले हम लफ्ज को जाने, और लफ्ज को हम कहां जानेंगे, इल्म सर्फ से जानेंगे। इसलिए अब अगर आपकी और ख्वाहिश हो तो मुफीद और गैर मुफीद आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपसे कलाम की तारीफ की थी, तो कलाम उसको कहते हैं जो कई जुमलों से मिलकर बने, फिर उसकी भी 2-4 किस्में हो जाएंगी। तो आप इल्म सर्फ और इल्म नहव सब में उलझ जाएंगे। इसलिए हमारी अपनी जाती राय और मशवरा यही है कि इल्म नहव को यहीं पर रोक दिया जाए और इल्म सर्फ पर हम गुफ्तगू को अपनी जारी रखें। तो हम फिर इल्म सर्फ की तरफ आते हैं और हम मौजू के बाद, तो अब आप देखें हमने इल्म नहव को यहां से बिल्कुल दूर कर दिया है, क्योंकि हमने ये सोचा कि पहले हम इल्म सर्फ यानी लफ्ज पर हम पढ़ लें। जब लफ्ज के बारे में हम जान लेंगे तो जाहिर उसके मानी के बारे में भी हमें जानने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम उसी हिसाब से बोलेंगे। हमने मौजू की अल्फाज इंसान के मुंह से आए, आवाज निकली और एक अल्फाज आया, अल्फाज से मौजू और मुहमल आए, बामाना और बेमाना। उसके बाद हम कलमा को यहां खत्म कर देते हैं। मौजू से उसकी सूरत और हैत के लिहाज से 2, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। फिर हम जब आगे और अब पढ़ते हैं तो मुस्तकिल की 5 किस्में होती हैं। एक है इस्म, दूसरा है सिफत, तीसरे ज़मीर, चौथा फेल, 5वां तमीज। ये मुस्तकिल की 5 किस्में हो गई। अब हम इस्म की तारीफ, फिर उसकी किस्में जानेंगे, सिफत की तारीफ, उसकी किस्में जानेंगे, ज़मीर क्या है उसकी तारीफ और उसकी किस्में जानेंगे, फेल उसकी तारीफ और किस्में, तमीज उसकी तारीफ और किस्में। जब हम यहाँ आएंगे तो इतना लंबा ये ग्रामर यही हो जाएगा कि जहन नशी करने में ही दिक्कत महसूस होने लगेगी। अभी इस्म की बहुत सारी किस्में होंगी, सिफत की होंगी, ज़मीर, फेल और तमीज की होंगी। यहाँ 5 किस्में, गैर मुस्तकिल उसकी 4 किस्में हैं। एक है रब्त, अत्फ, फजाइया और तखसीस। ऐसे तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमने नाम ले लिया, लेकिन हम एक एक की तारीफ और उस लफ्ज से ताल्लुक क्या होता है उसको बताएंगे, ताकि आपके जहन में मुकम्मल जहन नशी हो और तब आपको कोई बात करने में आसानी होगी कि हमने सिर्फ सुना और पढ़ा नहीं है, हमने उसको समझा है जो मेरे जहनों में बैठा हुआ है। इसलिए अब हम रब्त, अत्फ, फजाइया और तखसीस जो इसके गैर मुस्तकिल कैटेगरी में ज़मरे में आते हैं इसको हम समझेंगे, और मुस्तकिल जो 5 किस्में इसकी हैं, इस्म, सिफत, ज़मीर, फेल, तमीज, इसको समझेंगे। अब इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम इस्म से शुरू करेंगे, फिर उसकी तारीफ, उसकी किस्में, उसकी और किस्में, इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज फ़कत इतना ही। उम्मीद है कि आप तमामी नाज़रीन को, तालिबा और तालिबात को जो भी हमने क़वायद के सिलसिले में आपसे बात की, गुफ्तगू की, यकीन रखते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो यही हमारे लिए कामयाबी है कि हमने आपको समझाने की जो कोशिश की थी वो मुकम्मल शायद हो गई। इसलिए आइंदा वीडियो में हम अपने इस उर्दू कवायद के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस्म, सिफत, ज़मीर, फेल या तमीज़ पर हम उसकी तारीफ के साथ उसके अक़साम को भी बयान करेंगे। आज के इस वीडियो में बस फ़कत इतना ही। आप तमामी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तलबा व तालिबात का बहुत बहुत शुक्रिया।